Fine. So what we will do is next class means from this chapter I will make you write the answers regarding cell. Uh, if you want a particular answer, then I will make you write. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके इफ यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट मैम ये बिल्कुल नहीं आ रहा है कैसे लिखना है तो जस्ट पुट इट ऑन द ग्रुप एंड आई विल सेंड यू द रिटन आंसर अंडरस्टूड Ma'am, ma'am, the group is for only the admins. The admins can write only there. okay is it so Yes, ma'am. okay fine so in the group you can find me Ma'am, there is another number also. okay whatever it is uh, I will find out the solution. Okay, when you want to send the questions, I will ask that you want to send the questions. Then we will keep the group open. You can send it. Okay. Okay, ma'am. So shall we start with the tissues? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did we started? Yes, ma'am. Did we started something last class? Yes, ma'am. How much? You just gave us the introduction. Okay, fine. Yes, Only the only introduction part. This one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. On this. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's begin with this that we are going to study right now regarding the plant tissue. Tissue is the chapter which is consisting of our both. जिसमें प्लांट टिश्यूज भी हैं एनिमल टिश्यूज भी हैं आपको दोनों ही पढ़ने हैं वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विद द प्लांट टिश्यूज ओवर हियर सो सी दिस a basic classification regarding the tissue is meristematic and permanent okay so basically ये जो classification है पहला वाला first classification is something which tells you about that classification is done on the basis of the type of origin मतलब वो किस तरीके से originate हो रहे हैं on the basis of sorry ठीक है on the basis of origin so meristematic tissues and permanent tissues are the two major classifications here it is given that meristematic tissue is classified into apical meristem and lateral let me just zoom it so that you can see it nicely can you see now Yes, ma'am. We can. Yes, ma'am. fine now I think it will be good so you can write it also okay so plant tissues first classification is meristematic two types are already written over here that is apical or can be called terminal lateral or cambial meristematic tissue and one more is there I will just write it over here with my pen I think due to some reason it must have been gone somewhere I think it is deleted okay so one more is there is internodal meristematic tissue internodal also it can be called intercalary also okay so this is one major type internodal or intercalary meristematic tissue three types of meristematic tissues are there then permanent tissue is there permanent tissue on the basis of its function ये जो classification ही है उसके function के basis पर if they are protective it is of some different type if they are supporting
then it is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And if it is conducting, then it is xylem and phloem. Okay, so ये basic classification है regarding the plant tissue. So this you have to mention in your notebook. So this is based on the function. ये classification है वो further वो function के basis पर है. Meristematic tissue का further classification is based on location. ठीक है. सो प्लांट टिश्यू जो है बेसिकली फर्स्ट जो मेजर सब टाइप बनता है उसका मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब सेल कहाँ से डेवलप हो रहा है उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है. देन सेकेंड इज इफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड, it is classified on the basis of location of it, where it is being located, what is the place of it. Then permanent tissue is classified on the basis of functions: protective, supportive or conducting. If these three functions they are performing, they have different type of cells, type of tissues which are assigned to do that function. So that is how the whole plant tissue classification is being done. So we will study each and every one of them individually and regarding their structures, their locations and their functions. अब हम सभी का individually ये सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. So have you written this? Ma'am, can Yes, you ma'am. please Yes, zoom ma'am. in the supporting area? Yes, ma'am. Just a minute. Ma'am, please wait. Yes. Yes, I am waiting. Don't worry. Okay. Ma'am, can you zoom again to the mat? I'm not getting what you are asking, beta. Come again. Ma'am, sir. please zoom it. Zoom it. Okay. I'm on the permanent issue. Yeah, sure. Just hold on. Just hold on. Just hold on, your attendance is going on. Just hold for 2 minutes. Name bolo. What is the meaning of the word meristematic? I'm coming to it. Just to, Ma'am, please show the third point of the mathematic. yeah. Just give me 2 minutes. I'm giving. Right? Yeah. Now is it okay? Ma'am, please show permanent issue. Yeah. Now, in my book, it is written that permanent tissue can be classified into simple and complex. Yeah, that can also be done on the basis of types of cells, simple and complex. Okay, I will give you that also. Okay, ma'am. Yes, ma'am, done. Done? Fine. So simple and complex जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स. मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सेम परमानेंट टिश्यू अगर मैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करती हूँ तो सिंपल
और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है वो है जाइलम एंड फ्लोएम, और सिंपल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सेम थिंग। अब दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, हर चीज को क्लासिफाई करने का तरीका अलग होता है बेटा। जैसे सपोज इफ आई गिव यू वन एग्जांपल that if I tell you are 30 students right now in front of me, okay, मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने क्लास में बच्चों को क्लासिफाई करो, ठीक है? तो क्लासिफाई करने का सबसे पहले तरीका क्या है कि आप लोग जो कुछ होगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करोगे कि चलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। आप हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो, आप एज के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो, आप मेरिट के बेसिस पर कितने मार्क्स आते हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, उस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे वही 30 बच्चे का स्लॉट है, लेकिन आप क्लासिफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. ठीक है, तो बस उसी तरीके से अगर टाइप्स ऑफ सेल्स, परमानेंट टिश्यू को अगर टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सिंपल जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो जाइलम फ्लोएम है। सिंपल इसलिए क्योंकि ये सारे जो टिश्यूज हैं जो क्लासिफाई हो रहे हैं वो एक तरीके के सेल से बने हैं। जो पैरेन्काइमा है वो एक टाइप का सेल है, कोलेनकाइमा है वो सारे के सारे एक अपने तरीके के सेल है, स्क्लेरेनकाइमा वो अलग टाइप के सेल्स है। तो सब आप खुद अपने अपने टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, वाइल जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो मिक्सचर ऑफ सेल्स है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So, shall I change the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. If you don't want to change, then tell me, no ma'am, I am writing. Otherwise, just I will get the idea that you want it to change. Okay? Fine. So, see this meristematic tissue. ठीक है, मैं इसके बारे में जो भी समझाऊंगी वो इसी स्लाइड पर लिखूंगी, सो यू हैव टू नोट डाउन अकॉर्डिंगली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड द वर्ड मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मतलब मदर टिश्यू। ओके, इट्स अ मदर टिश्यू बिकॉज बाकी के जो भी आपने अभी क्लासिफिकेशन पढ़े ना बेटा, परमानेंट में जो भी है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, एवरीथिंग, वो सभी के सभी जो हैं वो इसी टिश्यू से मॉडिफाई होकर बनते हैं। सो दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक, दैट मीन्स मदर टिश्यू। ठीक है, अब सो see this and try to understand this particular tissue। इनके अगर आप सेल्स को देखोगे, so the group of cells of meristematic tissue, cells कैसे हैं वो हम लिख रहे हैं। cells are smaller in size with big nucleus, dense cytoplasm, okay, and they are dividing rapidly। ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सेल का साइज छोटा है पर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, मतलब काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है, एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म बिकॉज क्योंकि सेल्स जो है वो अभी मेच्योर नहीं है, वो बहुत यंग है, यंगर स्टेज में, and they are dividing rapidly, immense speed is there in their division, so that part you have to understand। okay, these are some of the basic properties of the meristematic tissue। now just see this कि ये जो 3 टाइप के meristematic tissues है, apical, intercalary and lateral, so I am writing
पार्ट बाय ऑफ देम, ये 3 टाइप्स हैं. सो अपाइकल आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. ठीक है, उसका लोकेशन. Location of apical meristematic tissue is on the tip of shoot and root. That means if I am drawing it like this, if this is a shoot of the plant and if this is a root of the plant, then on the tip whatever tissue is present, that is a meristematic apical meristematic tissue. सिमिलरली अगर शूट में जो ब्रांच है उसके टिप पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट इज मींस शूट मतलब एवरीथिंग, वेरेवर देयर इज अ टिप देयर शुड बी अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है. Could you please again explain the apical meristematic? I'm not getting your voice बेटा. Okay, fine. So the thing is apical मतलब ही होता है टिप. So टिप मतलब शूट एक्सेस पर और रूट एक्सेस के टिप्स पर इसकी लोकेशन है. ठीक है, तो शूट मतलब एवरीथिंग कम्स अंडर इट, ब्रांचेस ऑल्सो, और जो मेन ट्रंक है उसकी टिप पर भी, और जो रूट है उसके टिप पर भी ये पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ जस्ट सी दिस, दैट we have to understand its function. So function, क्योंकि ये टिप पर लोकेटेड है, शूट और रूट के टिप पर लोकेटेड है, it is responsible to increase the height of the plant. Okay, it increases the height और लेंथ ऑफ द प्लांट. अगर रूट की बात करते हैं तो लेंथ, क्योंकि डाउनवर्ड जाता है, और अगर हाइट की बात करते हैं देन शूट. सो बेसिकली वो हाइट को इंक्रीज, वर्टिकल ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है. वर्टिकल दोनों तरफ, रूट की तरफ भी और शूट की तरफ भी, सीधा सीधा ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट की आप, अगर आपने कभी प्लांटेशन किया है या किसी को करते देखा है या सीरियसली ऑब्जर्व किया है, तो आई थिंक ये जो चीज़ है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना जल्दी से डिवाइड होकर बढ़ता है. अगर आपने अशोका ट्रीज देखे होंगे तो अशोक ट्रीज जो होते हैं उनको आप अगर लगाओगे तो ओवरनाइट दे विल ग्रो एटलीस्ट 1 फीट तक वो बढ़ जाता है एक ही रात में. ठीक है, सो दैट विल बी द मीन्स विद इन 24 आवर्स 1 to 1.5 फीट जितना वो बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम गेन करता है. सो हाइट जो है उसका बहुत जल्दी जल्दी, आप मतलब सभी प्लांट्स में हाइट बहुत जल्दी होता है, बट द थिंग इज जो विजुअली आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो अशोक ट्रीज में बहुत जल्दी से कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट द रिगार्डिंग अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ऐसे सेल्स जो प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Good. Now see this. We are talking about then intercalary meristematic tissue. ठीक है, intercalary meristematic tissue जो है, just see this. I'm writing with another color. ठीक है, so intercalary meristematic tissue. Please switch off your mic. Don't say speak in between. I can't hear you. First of all. Okay. See this. Intercalary meristematic tissue जो होता है, सबसे पहले उसकी लोकेशन समझते हैं. ठीक है. So location wise, if you have to understand, then see this. I am drawing over here. That part you have to see. So if I draw a shoot, आपने shoot को अगर बहुत ध्यान से देखा हो, you can see some lines like this. The way you have lines on your fingers, ऐसा कुछ देखा है आपने शूट पे?
Yes, ma'am. ओके, इनको कहते हैं हम नोड्स। इनको क्या कहते हैं? नोड्स हैं, ठीक है। तो ये जो नोड्स हैं एक्चुअली, these nodes are responsible for the origination of the branches। जहाँ पर नोड्स होंगे वहीं से ब्रांच जो है वो ग्रो होता है। ब्रांच ग्रो होता है या फिर नया लीफ ग्रो होता है, वॉट एवर इट इज, या अगर फ्लावर ग्रो होना है तो वो भी नोडल रीजन पे ही ग्रो होते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. तो Yes, ma'am. नोड्स जो हैं वो नया जो भी साइडवे ग्रोथ है प्लांट के लिए, ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्लावर्स, उन सभी को बेयर करता है नोड्स। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोडल रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसे बोला जाता है इंटरनोडल रीजन। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी प्रेजेंस जो है वो नोड्स के नीचे रहती है। सो सी दिस, सी जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी प्रेजेंस यहाँ होगी, इस नोड के नीचे, इस नोड के नीचे, इस नोड Just below a node. just below the nodes. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, just Yes, ma'am. below the nodes the intercalary meristematic tissue is present. The now अब आप पूछोगे कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्यों जरूरत है? सो दैट जस्ट डू अंडरस्टैंड दैट आपने जो बड़े बड़े ट्रीज देखते हो आप लोग, तो आपने कभी ब्रांचिंग ऑब्जर्व किया है अगर, तो वो एक पैटर्न में होता है। ठीक है, अगर ये नोड्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि प्लांट में अगर एक ही जगह से सारे ब्रांच निकलेंगे तो प्लांट्स जो है वो उसको बैलेंस कर पाएंगे? No, ma'am. नहीं, No, ma'am. ठीक है, प्लांट्स जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर एक ही जगह सारे ब्रांच, सारी लीव्स और सारे फ्रूट, सारे फ्लावर्स ग्रो हो जाएंगे तो जो सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलना चाहिए वो प्रॉपरली गेन नहीं होगा। कोई नहीं होगा। ठीक है, सो लाइट नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं मिलेगा, अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, ये सब कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो इंटरनोडल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द सब्सटीट्यूट्स, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द ब्रांचेस, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स and proper arrangement of the flowers on the shoot of the plant. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, so location, what you will write is, the location is nothing but just below the nodes or between, that is what you have to write. Then and function nodes of shoot, that mentioned it. Okay, below the nodes of the shoot, and function is to maintain the proper distance between two successive nodes for proper arrangement of branches, leaves, flowers, etc. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to. अब दिखाई दे रहा है? Ma'am, do they help in rapid Yes, ma'am. elongation? Do they help in? Rapid stem elongation.
Not getting you. Help in Rapid stem elongation. rapid stem. Stem elong. Rapid stem elongation. Yes, ma'am. Do they Yeah, help in that? definitely. See, I will just explain you further. Just once you will write this, I will make you understand that. देखो, प्लांट जो है वर्टिकल जो हाइट है वो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ले लेता है, ठीक है। अब अगर ब्रांचेस और ये सब डेवलप नहीं होंगे तो जो एक इन द ओपन एटमॉस्फेयर जो ट्री को बैलेंस करना है खुद को अगेंस्ट द एयर एंड ऑल दैट, जो ट्री जो अब मूव करते हैं उसको प्रॉपर एक जो बैलेंसिंग चाहिए वो किसकी वजह से आएगा? ब्रांचेस और लीव्स की वजह से मिलेगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर इंटरनोडल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होंगे और ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी तो जो एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन बेयर करने की कैपेबिलिटी है वो ट्री में नहीं होगी। अंडरस्टैंड? Okay, ma'am. ओके। एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स इसलिए क्योंकि सभी को प्रॉपर लाइट प्रॉपर एयर और अगर रेन होती है तो प्रॉपर वाटर सभी को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर नोड्स होंगे तभी वो प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगी, ठीक है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देख मैंने मेंशन किया है इसको ऑन द शूट, ठीक है, बिलो द नोड्स ऑफ द शूट, बिकॉज write down if you don't remember it, if you remember it then it's good. roots में nodes नहीं होते, okay, roots doesn't have nodes, Yes, ma'am. Written. okay, roots में nodes नहीं होते, इसीलिए वहाँ पर आप इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस नहीं देखोगे। Clear? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. So this is what regarding the intercalary meristematic tissue. Now see this. Let me talk about the lateral one. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ठीक है, सो हियर आई विल राइट द लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहले हम ये देखेंगे कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, सपोज इफ दिस इज अ स्टेम आई एम होल्डिंग एंड इफ आई कट इट एंड सी इट लाइक दिस, तो मुझे ऐसा व्यू दिखाई देगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज हाउ आई विल ऑब्जर्व। आपका स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है, फिर से बताएंगे? इज इट सो? स्क्रीन इज नॉट क्लियर बेटा? Ma'am, it is No, ma'am, it's clear. It is clear, ma'am. It's clear. Ma'am, the recording is on. Yes, it's on. Okay, ma'am. Okay, see this lateral meristematic tissue जो है, आप अगर स्टेम को कट करोगे और अपने सामने से इसे देखोगे तो वो इस तरीके का सरफेस दिखाएगा आपको, ठीक है। सो अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप फाइंड करोगे तो वो जो है ऐसे पेरिफेरी में आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर टू यू? Okay, ma'am. ठीक है, पेरिफेरल रीजन मतलब डायमेट्रिक जो है, डायमीटर जो है उस प्लांट का, उसकी चारों तरफ जो है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस है, ठीक है। तो वो लोकेशन इज द पेरिफेरल लेयर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द शूट को सराउंड करके रखता है वो एंड स्टेम। पूरे आसपास सब जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आसपास सब जगह क्यों प्रेजेंट है? डू अंडरस्टैंड दिस। प्लांट ने अपना हाइट इंक्रीज कर लिया,
प्लांट ने ब्रांचेस ग्रो कर लिए, लेकिन अगर प्लांट जो है वो लीन रहेगा, एकदम पतला दुबला रहेगा, तो विल इट बी एबल टू स्टैंड? No, ma'am. No, ma'am, it cannot. No, withstand. ma'am. It cannot. So what does that mean? That means it should increase the girth. उसको अपना डायमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो हाइट और जो ये ब्रांचेस है उनको प्रॉपरली बैलेंस कर पाएगा. ठीक है. सो फंक्शन इज it increases the girth of plant, चाहे वो रूट हो या शूट हो. ठीक है. increases the girth, GIRTH. Could you please again explain the meaning of girth? ठीक है. girth means diametric growth, peripheral growth. ठीक है. width of the plant. ठीक है. जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लो. सपोज the way you were when you were only 7 years old. ठीक है. आप वैसी बॉडी के साथ सिर्फ हाइट गेन कर लेते और आपके हैंड्स जो है वो अभी 7 ईयर ओल्ड जितने होते हैं, आपके बाकी सारे जो पार्ट्स हैं जो आपको साइड में एक्सेस दे रहे हैं वो सभी 7 ईयर्स ओल्ड जैसे होते हैं, तो आप सीधा खड़े रह सकते हो? No, ma'am. No, ma'am. तो दैट मीन्स अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली आपका विड्थ और जो आपका वाइडनेस है वो भी डेवलप होना चाहिए. सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी पेरिफेरी ऑफ द शूट एंड रूट एक्सेस फंक्शन इज टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. गर्थ इज नथिंग बट द डायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स विड्थ ऑफ द प्लांट इन शॉर्ट. Ma'am, यस. students are trying to join. We have already 30 students. Who are there who wants to join? Okay. So that is what you have to understand regarding the meristematic tissues. ठीक है. ठीक है. तो ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही यंग सेल्स होते हैं, बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं. इनकी लोकेशन भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर इनको डिवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे हैव टू डिवाइड वेरी फास्ट, अदरवाइज प्लांट जो है वो प्रपोर्शनेट ग्रोथ शो नहीं कर सकता. ठीक है. सो दैट टू मेंटेन दैट प्रपोर्शन the meristematic tissue have its certain locations, and see this it is responsible for the physical means पूरा फिजिक जो प्लांट का डेवलप होना चाहिए वो इसी टिश्यू की वजह से डेवलप होता है. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, so is it done? Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. सो नाउ अब परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं. परमानेंट टिश्यू में जो प्रोटेक्टिव है उसको पहले साइड में रख दो, तो वो लास्ट में पढ़ेंगे. हम पहले बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज की. ठीक है. तो सपोर्टिंग या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं. तो सिंपल परमानेंट जो है जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा. अच्छा, अब ये चीज़ एक चीज़ समझ लो कि जो ये पर्टिकुलर टिश्यूज है परमानेंट. ठीक है. आई एम ट्राई टू शो यू वन थिंग ओवर हियर. सी दिस. वी नो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है अपनी अपनी जगह पर. ठीक है. यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ नोड्स हैं तो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक है. ठीक है. दिस इज हाउ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट, and it is also present over here on the sides so that it can increases the girth.
So this is how it is present. This part you should know. Now see this, that जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सपोज ये प्लांट की हाइट है, दूसरे दिन प्लांट की हाइट जो है वो यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, तो एक नया नोड आ गया होगा. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो बेसिकली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे, ठीक है, ये जो प्रेजेंट है नोड जो वगैरह, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो क्या है, जो यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले था, वो जब आगे बढ़ा तो वो कुछ सेल्स नोड के पास छोड़ के गया है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देते हैं, बन जाते हैं. आया समझ में? और एक बार रिपीट कर दीजिए. Ma'am, can you repeat? Please don't Yes, repeat ma'am. again. Do understand this. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो जब दूसरे दिन आफ्टर 24 आवर्स उसका जब हाइट बढ़ा है, तो एक और नया नोड प्रेजेंट हो गया होगा. Yes, ma'am. जो नया नोड Yes, आया ma'am. है, तो इतनी ये जो हाइट इंक्रीज हुई है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, वो यहाँ पर कुछ सेल्स छोड़कर फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक नोड नया बनता है, और ये जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है. अभी चीज समझ में आई? Yes, ma'am. गुड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ सी Yes, दिस, ma'am. वन मोर थिंग. इतने पूरे डिस्टेंस में इस जगह पर, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? Permanent. परमानेंट है. ठीक है, तो अब इस जगह पर ये परमानेंट वाले सेल्स कैसे आएंगे? ये वो सेल हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बहुत यंग होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत ही फ्रेजाइल उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है. तो बाद में जब ये ऊपर अपना हाइट लेता है, तो यहाँ पर तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि नोड है, इसीलिए तभी नोड बन गया वहाँ पर, क्योंकि उसने मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोड़े थे. लेकिन जब इतने डिस्टेंस पर वो कुछ सेल्स को एडल्ट करता है, मतलब मैच्योर होने देता है, यहाँ पर जो वो सेल्स छोड़ के जाएगा वो मैच्योर हो जाएंगे. मैच्योर हो जाएंगे मतलब उनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत प्रॉपरली फॉर्म हो चुका होगा, साइटोप्लाज्म बहुत क्लियर हो जाएगा, और न्यूक्लियस जो है वो छोटा हो जाएगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Could you repeat? यस. वेट, ध्यान से सुनो फिर से. अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जब वो हाइट गेन करता है, जितने भी घंटे बाद उसकी हाइट बढ़ती है, तो एक नया नोड बनाने के लिए वो वहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को छोड़ के जाएगा, जहाँ पर नया नोड बनेगा. ठीक है, क्योंकि नोडल रीजन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है. बट बाकी सारी जगह पर तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ज़रूरत नहीं है, बाकी जगह पर हमको परमानेंट सेल्स चाहिए. तो वहाँ पर ये जो पीछे जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, खुद को मेच्योर करते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं, खुद को बड़ा बनाते हैं, एडल्ट बनाते हैं, ओल्ड करते हैं खुद को, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो बहुत यंग है. तो वो ये सेल्स जो है वो खुद को मैच्योर इनफ डेवलप करते हैं कि उनका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उन साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो छोटा हो जाता है. तो वो सारे सेल्स क्या बन जाते हैं? परमानेंट सेल्स. अभी समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब एक चीज समझो कि मेरिस्टेमेटिक को मदर टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे जो बाकी के पीछे सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं वो मेरिस्टेमेटिक से ही ओरिजिनेट होकर आ रहे हैं. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज पैरेन्काइमा. ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो सेल है वो ऐसा सेल, ऐसे टाइप के सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहले फॉर्म हुआ है. गेट माई वर्ड्स वेरी क्लियरली. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो इस तरीके से होते हैं. See this.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनका बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बहुत रफ होंगे, बहुत फ्रेजाइल होंगे, ठीक है। कोई उनके आपस में कोई बीच में जगह नहीं है, पूरे अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फर्स्ट टाइम परमानेंट टिश्यू बनाता है, जो पहला परमानेंट टिश्यू बनता है वो है पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल टिश्यू जो है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस के पैरेन्काइमेटिक सेल्स कैसे होते हैं। सी दिस दैट पैरेन्काइमा जो सेल्स है, सबसे पहले इनका शेप जो होता है वो पोटैटो जैसा होता है, रैंडम, ओवल, राउंड, बड़ा ओवल, छोटा ओवल, बड़ा गोल, छोटा गोल, सर्कल, anything you can say, but they have to be in somewhere, they have to be round. Okay, so their shape is potato, just like potatoes, and basically round or oval, basically round and oval. Now see this, जो cell wall and cell membrane well developed हो जाता है इनका, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस नॉर्मल हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म क्लियर हो जाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। दिस यू शुड नो। एंड अनदर थिंग इज रिगार्डिंग दिस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लिविंग परमानेंट टिश्यू, ऐसा टिश्यू है जो लिविंग इन नेचर है, ठीक है। अनदर थिंग रिगार्डिंग दिस दैट सेल्स हैव इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। कैसे है, सी दिस, आप जब भी पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज बनाएंगे तब आपको ये ध्यान रखना है, आप लोग डायग्राम्स बनाते हो तो कस कस के शेड करते हो और सब कुछ करते हो, लेकिन साइंटिफिकली ड्रॉ अगर करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो परमानेंट पैरेन्काइमा बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टिप ऑफ पेंसिल से बनाओ, ताकि आप जस्टिफाई कर सको कि सेल वॉल जो है वो थिन होती है और वेल डेवलप्ड होती है, इस तरीके से थिन सेल वॉल्स एंड ऑल दैट, ठीक है, क्योंकि यंग है अभी। और like this, can you see 3 cells are connected to each other? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली पैरेन्काइमा में 3 सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं और एक इंटरसेल्यूलर स्पेस जनरेट करते हैं। दिस इज इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में जगह होती है। That is what the parenchyma tissue is explaining us. Understood this? Do they have large intercellular spaces? Yes, they have huge intercellular spaces. But intercellular space तभी create होगा जब 3 cells आपस में connected होंगे. If you want to see that, just see over here. Ma'am, living PT means, ma'am, PT full from? Permanent tissue. See this, 3 cells connected है, यहाँ पर 4 है, 4 भी हो सकते हैं बट बेसिकली 3, देखा? Understood this part? Ma'am, what you have written there as living PT? Living permanent tissues. पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग परमानेंट टिश्यू है, आया समझ में? Yes, ma'am. गुड, सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द पैरेन्काइमा इज, ठीक है।
In our book, it is given that they are unspecialized. Ma'am, what is the meaning of unspecialized? अनस्पेशलाइज्ड मतलब Yes, ma'am. फाइन, गॉट इट? Ma'am, we couldn't hear anything. yes, ma'am, we couldn't hear anything. ओके फाइन. सो अनस्पेशलाइज्ड मतलब ये पैरेनकाइमेटिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली कोई भी स्पेशल फंक्शन के लिए डिजाइन नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेस क्रिएट करते हैं पूरे प्लांट में. मतलब जहाँ पर किसी स्पेशल टाइप के सेल की जरूरत नहीं है वहां पर पैरेनकाइमा ही घुसा हुआ होगा. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. That is what the unspecialized is. But And that means that they do not serve any special function. they did not serve any special function until and unless they are modified with certain characteristics. So वो कैसे खुद को modify करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ. Ma'am, can you unzoom the page? Okay. Now this is clear to you? Yes, ma'am. See this. These parenchyma cells वैसे वो अनस्पेशलाइज्ड है क्योंकि आप जस्ट ये समझो एक वर्ड होता है ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मतलब प्लांट में वो एक ग्राउंड क्रिएशन करते हैं जिसके ऊपर बाकी सारे टिश्यूज जो हैं खुद को एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, मतलब एक शीट जैसे है, चादर जैसे है, जिसके ऊपर बाकी के सारे टिश्यूज जो हैं या बाकी की जो सारी चीजें हैं वो अपना अरेंजमेंट करती है. तो इसलिए इसको ग्राउंड टिश्यू भी बोला जाता है. ठीक है, बट वो आपकी बुक में नहीं है, सो नो नीड टू. बट द थिंग इज फॉर फंक्शनिंग, फॉर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं. तो खुद को मॉडिफाई कर लेने के लिए ये इनका क्या क्या नाम ये कुछ तरीके से अगर मॉडिफाई करते हैं तो सी दिस. अगर ये खुद को अगर ये खुद को फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई करते हैं तो ये बन जाते हैं क्लोरेनकाइमा. मतलब पैरेनकाइमा अगर लीफ में प्रेजेंट है तो उसको ग्रीन कलर का होना चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. पैरेनकाइमा अगर लीफ में प्रेजेंट है तो इफ इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स देन इट हैज टू बी ग्रीन इन कलर. और ग्रीन इन कलर होने की वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे. ठीक है, तो अगर पैरेनकाइमा खुद के अंदर क्लोरोप्लास्ट को बेयर करता है तो वो बन जाता है क्लोरेनकाइमा. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So definition of chlorenchyma is, you can write it down. When the parenchyma modifies itself for photosynthesis, when the parenchyma modifies itself for photosynthesis, then it will bear chloroplast in it.
then it will bear the chloroplast in it. Then it is called chlorenchyma. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, सभी ने लिख लिया? Ma'am, can you please repeat? When the parenchyma modifies itself for the function that is called photosynthesis, for the photosynthesis, then it will bear chloroplast in it. That is, it is then when it is be called chlorenchyma. I think my words may change because it's not like rata wala definition nahi hai. Whatever is there, I am giving you. So if words change, don't meaning nahi change hona chahiye. ठीक है? So is this part is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Now see this. अगर वो स्टोरेज करने लग जाते हैं, दिस इज फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर वो स्टोरेज करते हैं, बहुत सारी जगह पर उनका काम है स्टोरेज, जो भी फूड बनता है स्टार्च वगैरह, तो उनका कुछ स्पेशल नाम तो नहीं है, बट इट इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा. कौन से पैरेन्काइमा बन जाते हैं? स्टोरेज पैरेन्काइमा. जब भी वो स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज पैरेन्काइमा के नाम से आइडेंटिफाई होते हैं. ठीक है? एंड थर्ड वन, अगर उनको जैसे स्पेशली आप ऐसे प्लांट्स को देखो जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ग्रो होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज में ग्रो होते हैं, लोटस वगैरह जो आप देखते हो वगैरह, वो सब कुछ, तो उस टाइम पैरेन्काइमा को खुद को मॉडिफाई करवाना होता है. क्यों? सो दैट प्लांट कैन फ्लोट ऑन द वाटर. तो वो फ्लोटिंग के लिए, मतलब बॉयंसी, द फोर्स ऑफ बॉयंसी डेवलप करने के लिए वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं. तो उस मॉडिफिकेशन में वो खुद के अंदर क्या लेकर आते हैं? एयर वैक्यूल्स डेवलप करते हैं. एयर वैक्यूल्स जब डेवलप हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं एरेन्काइमा. वो क्या बन जाते हैं? एरेन्काइमा. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. स्टोरेज पैरेन्काइमा की डेफिनेशन है कि व्हेन द पैरेन्काइमा हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा. ठीक है? एरेन्काइमा का डेफिनेशन है, राइट डाउन, व्हेन द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स Next. when the plant and its parts requires buoyancy in the water body to float in the water, then they are called erenchyma. Yes, ma'am. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो ये जो चीज है वो पैरेन्काइमा का काम है. तो सबसे पहले पैरेन्काइमा का जो शेप है वो पोटैटो राउंड ओवल शेप्ड होते हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं बट थिन होते हैं. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म क्लियर हो जाता है, न्यूक्लियस स्मॉल हो जाते हैं. एंड लिविंग परमानेंट टिश्यू है तो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है. एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिखाते हैं सेल्स. ठीक है? इंटरसेल्यूलर स्पेस. जस्ट सी दिस दैट आप अगर एक कंटेनर लेते हो, उस कंटेनर में
अगर आप पटेटोज को अरेंज करते हो, अगर आप पटेटोज अंदर डालते हो तो व्हाट विल हैपन, पटेटोज का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होगा, और इट विल बी लाइक दिस। ए या बी, कौन सा ज्यादा बेटर अरेंजमेंट है? मैम बी। मैम बी। बी। सिमिलरली पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं, वो एकदम प्रॉपरली अलाइंड नहीं होते। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ड्रॉ ऐसे करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है वो जस्टिफाई हो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what the parenchymatic tissue is. Now see next one, collenchyma. Ma'am, you didn't tell the locations of parenchyma. It's present, it is present everywhere. मैंने बताया ना बेटा, अगर लीफ में प्रेजेंट है तो क्लोरेनकाइमा बन के प्रेजेंट होगा, स्टोरेज के लिए प्रेजेंट है तो स्टोरेज पैरेनकाइमा, एवरीवेयर। इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, इसलिए उसको ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है, एवरीवेयर। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। Fine. Shall I proceed now? Yes, ma'am. Okay. Then comes collenchyma. ये दूसरा परमानेंट टिश्यू है, ये भी लिविंग है। दिस इज ऑल्सो अ लिविंग परमानेंट टिश्यू। सेल का जो शेप है सेम एज पैरेनकाइमा, पोटैटो शेप्ड है, ओवल राउंड लाइक दैट। ओके, सो जो शेप है वो बिल्कुल ही उसी के जैसे है। So that is what you can write, that just like they can be a oval or round or anything like that, oval round जैसे shapes हैं। See this, that जब ये cells आप देखोगे इनको तो जो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्रिएट होता है तीन सेल्स के जुड़ने से, वो जो स्पेस है that will be filled with one type of cementing material। ये जो एरिया है वो सीमेंटिंग मटेरियल से फिलअप हो जाता है। दैट्स वाई द सेल वॉल एट द, हम क्योंकि राउंड और ओवल है तो हम कॉर्नर्स नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वेयर दीज सेल्स आर अटैच टू ईच अदर दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉर्नर्स। सो यू कैन से दैट कि जहाँ पे भी कॉर्नर पड़ता है ना सेल का, वहाँ पर सेल वॉल थोड़ा थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट सीमेंटिंग मटेरियल। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है वो फिल्ड है विथ सीमेंटिंग material। Okay, that part you should understand, collenchyma। So ये क्योंकि सीमेंटिंग प्रेजेंट है तो डेफिनेटली सीमेंट का काम क्या है? चिपकाना, मतलब ग्लू स्टिक करना। वेरी गुड। मैम टू पैक। कॉलिन का मतलब ही होता है ग्लू, मतलब टू स्टिक। सबसे पहले तो ये सेल्स को बहुत अच्छे से आपस में स्टिक्ड रखेगा, ग्लूड रखेगा। तो अगर ग्लू रखेगा तो हम, जैसे आपने बिल्डिंग्स बनते हुए देखा होगा, हम ब्रिक्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल फिलअप करते हैं? Yes, ma'am. क्यों करते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, to stick them. स्टिक करने के लिए करते हैं, बट स्टिक करके क्या करेंगे? क्या फायदा होगा स्टिक करने से? Ma'am, it will be more ताकि कैप strong. ना टूटे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
तो ये जो पर्टिकुलर टिश्यू है इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। ये सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्ट करता है अच्छे से प्लांट को। सो दिस पर्टिकुलर टिश्यू हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इट प्रोवाइड्स, फंक्शन जो है उसका स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। दो पिक्चर्स आप देख रहे हो, एक के नीचे लिखा हुआ है टीएस। टीएस मतलब अगर मैं उनको सैलेड की तरह चॉप करके प्लांट को देखूंगी ना, तो जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसको हम टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। वाइल एलएस मतलब आपने कभी वर्टिकली कट करते हो सैलेड, स्पेशली कुकुम्बर वगैरह, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो लंबा लंबा कट करते हैं तो उसका व्यू थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब आप उसको प्लांट को लंबा कट करोगे तो ऐसा दिखेगा कोलेनकाइमा। देखो यहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल फील्ड है, सी दिस। Ma'am, but these are not oval. Ma'am, the LS sections. LS, what happened to that? Ma'am, they are not rounded or oval. Okay. When you cut the things in different sections, then the cells will view differently. You know that? Yes, ma'am. Okay. आप बस अपने घर में थोड़ा अपनी मम्मा को देख लिया करो, कभी कभार किचन में मम्मा को थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो, और स्पेशली जब वो चॉप कर रही होती है चीज़ों को तब देख लिया करो। जब वेजिटेबल्स को राउंड कट करती है तब वो अलग दिखते हैं, जब वेजिटेबल्स को लंबा कट करती है तब वो अलग दिखता है। थोड़ा सा कभी विजिट करना अपने घर के किचन को, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है इट्स अ प्रोहिबिटेड प्लेस, कोई किचन में जाना ही नहीं चाहता है ना। फाइन, सो जस्ट विजिट, सी योर मॉम, शी विल शो यू दैट टीएस और एल। मम्मा को टीएस एलएस तो नहीं पता है, लेकिन शी नोज कि हाँ दोनों अलग अलग है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. So fine. So that is what you have to understand regarding the colloncyle. Next, proceed. Is this cementing Yes. material made up of? What is this cementing material made up of? What is this? Cementing material made up of? Cementing material made up of. Yes, ma'am. The composition of the cementing material. Yes. This cementing material is made up of special type of polysaccharide. Polymer होता है एक बेटा. Okay. Okay, ma'am. I thought that it was made up of cellulose or something. Cellulose is also a polymer, but यहाँ पर cellulose filled नहीं है. It is different type of polymer. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Fine. So shall I proceed now? Yes, Yes, ma'am. 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 Good. Next one is sclerenchyma. यहाँ पर भी आपको ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस टिश्यू की स्पेशल क्वालिटी, स्क्लेरेन मतलब वेरी हार्ड। स्क्लेरेन का मतलब होता है वेरी हार्ड, ठीक है। एंड very special quality of this, dead permanent tissue. Out of all three, this one is called dead. Understood this part?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये क्यों डेड हो जाते हैं वो चीज देखो। जैसे ही सेल्स पुराने होने लगते हैं तो सेल की जो सेल वॉल होती है उसके पेरीफेरी से एक थिकनिंग शुरू हो जाती है। उस थिकनिंग की वजह से साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, ठीक है, और सेल का जो अंदर स्पेस है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस, जो अंदर वाला है स्पेस, वो ल्यूमेन जो है वो अब कम हो जाता है। ठीक है, ये पुराना सेल हो चुका है, तो वो जो धीरे धीरे जो ल्यूमेन है, बीच में जो जगह है वो खत्म होने लगती है, तो सेल जो है वो डेड होता है। दिस डिपोजिशन इज ऑफ लिग्निन। ये डिपोजिशन किसका है? लिग्निन का। लिग्निन क्या है? एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर, ठीक है। सो ये लिग्निन डिपोजिशन की वजह से जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब स्पेस इनसाइड द सेल बिकम्स नैरो, ठीक है, और ये जो सेल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। दे कैन बी ऑफ पॉलीगोनल इन शेप, उनका कोई भी शेप फिक्स नहीं है। दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, पेंटागोनल हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, ऑक्टागोनल हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी ड्रॉन विच कैन जस्टिफाई द sclerenchymatic tissue. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. When the cells become dead, Yes. this forms. The sclerenchyma dead tissue है सबसे पहले, और ये जो है, ये जो sclerenchymatic cells जो हैं वो सेल्स हैं जो सेल्स बुढ़े हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब उनका कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन लीव एज अ लिविंग बचा नहीं है, ठीक है। तो वो जो सेल्स हैं वो लिग्निफाइड हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझो, ये सभी के सभी ओरिजिन कौन है? मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक से ही पैरेन्काइमा बना था, मेरिस्टेमेटिक से ही कॉलेनकाइमा बने, और मेरिस्टेमेटिक से ही स्क्लेरेनकाइमा बने हैं। मतलब कुछ सेल्स जो होते हैं, जो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो बन गए हैं वो लिविंग टिश्यूज हैं, ठीक है। अब जो बाकी के जो सेल्स है, जो उनमें से जो सेल्स बुढ़े हो गए हैं, जो खत्म हो रहे हैं, वो सभी के सब स्क्लेरेनकाइमा कैटेगरी में आ जाते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. तो सबका ओरिजिन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Good. So it is showing the lignin deposition which leads to the formation of narrow lumen. बहुत कम स्पेस बचता है। अच्छा, अब क्योंकि ये इतने ज़्यादा थिक हो जाते हैं और डेड होते हैं और वेरी हार्ड इन नेचर होते हैं, तो ये जो हैं दे आर फॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये तो सबसे पहली बात, ये जो हैं वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक तो हो सकते हैं इस तरह से लंबे लंबे फाइबर्स, और एक हो सकते हैं इस टाइप के छोटे छोटे स्टोन सेल्स। दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के टू टाइप्स, स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स और स्टोन सेल्स। और स्टोन सेल्स को स्क्लेरिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरिड्स, स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स, एंड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये दो टाइप हैं स्क्लेरेनकाइमा के, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, these stone cells and sclerids or sclerenchymatic fibers are present in fruits, are present in the जो leaves जो बुढ़ी हो जाती हैं, जिसका आपने देखा होगा, जो पुरानी leaves होती है उनका जो ये central vein होता है बहुत thick हो जाता है, Yes, ma'am. मोटा Yes, ma'am, मोटा we हो have जाता है, this. वो स्क्लेरेनकाइमा से बन जाता है। नया नया जो होगा वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट सा होगा, वो पैरेन्काइमा से बना रहता है, बट वो स्लोली 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 डेड होके वो एकदम थिक हो जाता है और वो स्क्लेरेनकाइमेटिक हो जाता है। अंडरस्टूड? सो स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के, स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटिक स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स। नाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड स्क्लेरेनकाइमा ऑल द टाइम, ठीक है। आपने कभी गुआवा या पेयर फ्रूट खाया हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुआवा, अमरूद जिसको बोलते हैं, अमरूद खाते हो? Yes, ma'am. अमरूद का जो पल्प होता है,
वो थोड़ा सा आपको ऐसे दाने दाने वाला फील होता है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes, आप ma'am. इसका मतलब आप क्या खा रहे हो? आप स्टोन सेल्स खा रहे हो। आया समझ? Yes, ma'am. यक फील नहीं कर रहा है, वो स्टोन स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स हैं जो स्टोन सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और दैट्स वाई पल्प जो है वो ग्रैनुलेटेड बन जाता है। ठीक है, सिमिलर फीलिंग यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन चीकू सपोटास। चीकू ही बोलते हैं ना, ब्राउन ब्राउन आलू जैसा दिखता है जो। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. फाइन, आई डोंट नो इन बंगाली। ठीक है, सो चीकू जो होता है उसका भी जो पल्प होता है थोड़ा सा स्टोनी होता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो सब स्टोन सेल्स ही हैं एंड यू शुड ईट देम। वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं जिसका इमेजिनेशन भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यक वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, डोंट फील ऑफेंडेड, बट आई थिंक नॉन वेजिटेरियंस हो तो स्क्लेरेनकाइमा खाने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ सी दिस स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर, शुगर केन जो फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, वो सब स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स हैं। शुगर केन के फाइबर्स देखे हैं ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो सब स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. गुड। सो इनका भी फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अच्छा, एक चीज कॉलेनकाइमा में समझाना चाहती हूँ, यहाँ पर जब मैंने लिखा है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो स्ट्रेंथ रिलेट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आपने देखा होगा कि बहुत आंधी तूफान आता है तो जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वो पूरे बेंड होते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes. वो टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कॉलेनकाइमा बहुत स्ट्रांग है, वो उनको फ्लेक्सिबल मतलब झुका देगा अच्छे से और वो रेजिस्ट कर लेगा और वापस खड़ा हो जाएगा। तो वो कॉलेनकाइमा, बी थैंकफुल टू द कॉलेनकाइमा कि हमारे ट्रीज जो हैं वो मुड़ने पर टूटते नहीं है। और आपने कॉलेनकाइमा को की स्ट्रेंथ आप तभी एक्सपीरियंस करते हो घर पे जब पालक आता है। पालक का आप स्टेम तोड़ने की कोशिश करो, कभी कभी टूटता नहीं है, खींचते हो तो उसके फाइबर्स निकल जाएंगे पर वो टूटेगा नहीं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखा है? और बहुत सारे Yes, ma'am. हाँ, बहुत सारे वेजीज को आप अगर ऐसे तोड़ने जाओगे तो वो ब्रेक ऑफ नहीं होता है, वो मुड़ जाएगा, वहां पर एक क्रीज बन जाएगा लेकिन वो जल्दी से नहीं टूटेगा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा। मतलब वो वेजी आप ले रहे हो वो एकदम ताज़ा ताज़ा है। ठीक है, उसमें नया नया कॉलेनकाइमा है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट यहाँ जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है दैट इज रिगार्डिंग द टफनेस, प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. This is what the simple permanent tissues of the plant. Okay. Okay, any doubts still here? No, ma'am. Where are these fibers found? Which one? The fibers. Sclerenchyma fibers? Yes, ma'am. The sclerenchyma fiber. They are present almost in the veins of the leaves, in the some of the trunks also, जैसे शुगर केन के उसमें प्रेजेंट। शुगर केन जो है वो एक तरीके से ट्रंक जैसा ही होता है, नोड्स होते हैं ना उसमें, Yes, ma'am. Notes होते हैं. उसमें भी फाइबर्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स। तो ये बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वेन्स में हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। Okay, ma'am. ओके फाइन। Are they present in roots also? इन व्हाट? In roots? स्पेशली रूट्स में ये तब दिखेंगे जब आप प्लांट बहुत ओल्ड हो जाता है। ठीक है, ट्रीज जो बड़े बड़े पुराने ट्रीज होते हैं जिनके रूट्स आपने देखा होगा कि जमीन से बाहर निकल के ऐसे बेंड होके फिर जमीन में घुसे हुए होते हैं, एकदम ट्री जैसे टफ होते हैं।
The old plants or the old ओल्ड प्लांट्स, ओल्ड ट्रीज, उनके उसी में दिखाई देगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कोई डाउट्स है यहाँ तक? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. फाइन। नेक्स्ट आपकी क्लास कितने बजे होती है बेटा? Ma'am, 4:30. 4:45 ना? ओके फाइन। सो वी विल जस्ट वाइंड अप हियर, यू हैव अ ब्रेक एंड सी दिस। आपका होमवर्क आप एक करोगे, आपको टेक्स्ट बुक, राइट डाउन योर होमवर्क दैट रीड योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, रीड सिंपल परमानेंट टिश्यू। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, विल इट बी ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीड सिंपल परमानेंट टिश्यूज, तो अच्छे से रीड करना है और आपको नोट प्रिपेयर करना है इन तीनों के लिए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के लिए, अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंगली नोट प्रिपेयर करो पॉइंट वाइज, जिसमें आप मेंशन करोगे लोकेशन, फंक्शन एंड सबसे पहले स्ट्रक्चर और शेप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, तीन चीजें सिंपल परमानेंट टिश्यू की आप एक्सप्लेन करोगे अपने नोट्स में पॉइंट वाइज। स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए आप लिख रहे हो, लोकेशन पता चलना चाहिए और फंक्शन पता चलना चाहिए, और वो भी लैंग्वेज जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक की फॉलो होगी, एनसीईआरटी। ठीक है, Okay, ma'am. We will write it from the NCERT. हाँ, एनसीईआरटी आपको रिफर करना है अपना, थरो, वन लाइन यू हैव टू रीड एंड मेक द नोट्स फ्रॉम इट ओनली। बाकी के रेफरेंस बुक्स हैं वो आप अपने अलग से पढ़ो, इस नोट्स में मिक्स मत करना। Okay, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. We will do that. ओके फाइन। सो हैव अ वंडरफुल वीक अहेड and we will meet with the homework and proceeding with the next complex permanent issue in the next class. Okay, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. okay beta, thank you and stay safe. Okay, ma'am.